Hello everyone, my name is Bahadur Mori and I am an assistant English teacher in Southern English Medium School at Natajima, and today I am taking social science and we just continue our chapter this one 15 economy development, right? And the previous video we have already taught about many things about this chapter economy development. What is the meaning of economy development that we know, right? The constant increase in the national economic of country and increase in for the capital income of country, right? And improvement of the living standard of life, that is economic development. तो क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारे हमने देखे, राइट? वी आर रिच ओवर हियर, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है? फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो विदाउट फर्दर ड्यू आई वांट टू स्टार्ट दिस लेसन एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड एवरी लाइन, सो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. क्लियर? सो हियर वी आर फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, आपको याद ही होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेवलपिंग. जो कंट्री है वो डेवलप नहीं है, वो जैसे कि इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, आप इतना याद रखो, ठीक है? अमेरिका है वो डेवलप कंट्री है, इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? तो वो जो इंडिया जैसी कंट्री में किस किस प्रकार के इकोनॉमिक फीचर्स होते हैं, दैट वी गोइंग टू नो. क्लियर? ओके. So in this previous video we already talked about it. In the 2004 economy of developed and developing country is separate on the basis of per capita income. तो हमने this line underline I told you in the previous video. तो जो इकोनॉमी ऑफ डेवलप और इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री की जो हम डिसाइड होती है वो सेपरेट होती है, वो बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम पे होती है. तो देश की जो मात्रा जिसका हेड इनकम मतलब पर हेड इनकम जो होती है उस हिसाब से वी कैन डिसाइडेड विच इज़ द डेवलपिंग कंट्री एंड विच आर द डेवलप कंट्री. या सो एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, countries having less than $735 per capita income are categorized as a developing economy, right? So as per the World Bank reports of 2004, they decided in the 2004 that those countries who getting the growing the capita income less than $735, that country can be decided and can be categorized into the developing country. Clear? So we can say that India is a developing country. So Indian per head income is less than $735. Right? So following are the feature of developing economy. So here are the feature of developing economy. कौन से features रहते हैं in the developing economy that we going to know, right? So it's a very interesting this one, and also is an informative chapter for you, because India is a developing country, so that we can know the which are the features which is in our India, right? So first one is the less per capita income, right? So that means so this is the first point that you have to memorize, the less per capita income. Yeah. So national income of developing countries is less. National income of developing country is less while population growth rate is high. So per capita income remains low, and because of less per capita income, living standard of people is low. Here a less per capita income, that means कि जो national income of developing country is less. जो national income होती है developing country की, जैसे कि इंडिया जैसी country की जो developing economy होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है? और वाइल पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेट हाई, और उसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, जो वस्ती वृद्धि होना, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ना, वो ग्रोथ ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू इकोनॉमी, ठीक है? सो इन द इंडिया वी नो दैट आवर पॉपुलेशन इज डे बाय डे इंक्रीज, बट आवर नेशनल इनकम्स, आवर जीडीपी, आवर per capita income is decrease, right? So that means in the developing country we can see these features. Okay, in the developing country we can say that there is a income is less but the population is grow and grow. तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा population बढ़ता है मगर उनकी जो income होती है कम होती है. So पर कैपिटा इनकम रिमेन लो, तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम होती है वो रिमेन लो ही रहती है,
ठीक है, वो बढ़ती नहीं, बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीज एंड इंक्रीज, सो यू नो द डिमांड will be increased. If the population is more there, so there is a demand increase and other many things affect because of population. काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है population की वजह से, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, यू नो स्कैरसिटी ऑफ गुडीज और गुड्स की स्कैरसिटी रहती है, काफ़ी कुछ होता है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी सोचो कि ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से इनकम कम होती है देश की, ठीक है, और इनकम अगर कम होती है तो उनकी जो स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी लो होती है, ठीक है, उनका जो जीने का तरीका है वो भी थोड़ा है ना लो रहता है, जैसे कि उसके क्लॉथ्स है, उसका शेल्टर है, उसके व्हीकल्स है, उसके मेडिकल सर्विस है, उसका एजुकेशन है, सब भी सेक्टर है जो बेसिक ह्यूमन नीड है, दैट विल बी द यू नो डिक्रीज लेवल, बिकॉज हियर इशू इज दैट इनकम. So in the national, you know, in the developing country, the national income is less, but population growth is high. So the capita income automatically remain low, and you know, the living standard go to into the get into the very low level, right? Second point is population growth, right? So population growth rate is high in developing nation. Rate of population growth is 2% or मोर इन दिस नेशन से. जो पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ हाई, तो जैसे मैंने बताया कि डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ पॉपुलेशन को रेट होता है, उसका रेशियो होता है, वो होता है 2% से भी ज़्यादा, ठीक है, तो 2% तक उसका रेशियो रहता है पॉपुलेशन का, ये उसका एक इंफॉर्मेटिक है. उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तो उसका जो पूरा डिपेंडेबल है वो खेती के ऊपर निर्भर है. तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर कंट्री, सो इंडिया फुल्ली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, राइट, वो हम जानते हैं. तो जो डेवलपिंग कंट्री है तो खेती पे ज़्यादा निर्भर रहता है. ओके, लेट्स वी फाइंड आउट मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज एग्रीकल्चर. प्लीज़ उसको ब्रैकेट करो. मेन जो उसका ऑक्यूपेशन होता है, उसका जो धंधा होता है, जो उसकी रोजी रोटी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है एग्रीकल्चर, ठीक है. मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री में 60% से ज़्यादा पीपल्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है. उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी जो रोजगारी होती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं 60% तक. Contribution of agriculture in national income of this nation is about 26%. जो डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर की जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में 26% तक उसका कंट्रीब्यूट होता है. तो आप समझ सकते हो, इफ द इन द डेवलपिंग कंट्री इफ एग्रीकल्चर सेक्टर will collapse, so automatically in the developing country face many difficulties, right? So the main part of the developing country is agriculture. So तो वो होता है, अगर एग्रीकल्चर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो डेवलपिंग कंट्री में काफ़ी नुकसान हो जाता है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है 26% होता है, ठीक है. देन है यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. जो डेवलपिंग कंट्री में फोर्थ पॉइंट है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है अनइक्वल होता है, वो ठीक सही नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्री में कि जो फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के और डेवलपिंग के, वो डिस्ट्रीब्यूशन शेप के वो अनइक्वल होता है, इट्स नॉट इक्वल, वो डिफरेंट होते हैं. This inequality is seen in cities as well as villages. तो ये जो अनइक्वालिटी है, जो डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटी है, दैट वी कैन सी इन नॉट ओनली सिटीज बट वी कैन ऑल्सो सी इन टू द विलेज. तो गांव में और शहरों में भी डेवलपिंग कंट्री में ये अनइक्वालिटी हम देख सकते हैं, जो डिफरेंसेस है देख सकते हैं हम. 20% of rich people of the country share 40% of national income and poorest 20% people share 10% of the national income. ठीक है, इसको जरा अंडरलाइन कर लो. जो 20% तक के जो रिच पीपल होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, वो पूरे देश की 40% नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं, समझो.
यानी कि जो हमारी इंडिया है तो उसमें 130 करोड़ पीपल्स हैं, तो उसमें से उसकी 40% जो 20% धनाढ़ पीपल है, रिच पीपल है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 40% होता है देश की इनकम में। सोचो, ओनली 20% ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हु कंट्रीब्यूट 40% ऑफ नेशनल इनकम। बाकी का जो 80% पीपल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 10% के आसपास, ठीक है। तो इनका मतलब एंड द पुअरेस्ट 20% पीपल शेयर 10%, जो दूसरे 20% पुअर पीपल है, बहुत पुअर है, वो 10% ही अपना कंट्रीब्यूट करते हैं देश के इनकम पे, ठीक है। तो दिस concentration of income and property is seen in the hand of rich people in the developing country। तो हम डेवलपिंग कंट्री में देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो अमीर को अमीर बनाने में ही रहता है। रिच पीपल को ज़्यादा रिच बनते हैं डेवलपिंग कंट्री में, गरीब और गरीब हो जाता है। वो हम वी कैन ईजिली सी वी कैन ऑल्सो फील इन टू इंडिया, राइट। इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, गरीब है वो ज़्यादा गरीब हो रहा है और पैसे वाला है वो ज़्यादा पैसे वाले हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनइक्वालिटी है वी कैन सी इन टू द डेवलपिंग कंट्री। ऐसा ही होता है डेवलपिंग कंट्री में, गरीब और गरीब बनता है और अमीर है वो और अमीर बनता है, ठीक है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, दैट मीन्स बेरोजगारी, ठीक है। वो डेवलपिंग कंट्री में क्या है वो देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंट एज अ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। आपको पता है कि जो बेरोजगारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है डेवलपिंग कंट्री में। इन दिस कंट्री रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, जो 3% तक का ज़्यादा का रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो रहता है डेवलपिंग कंट्री में। इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में बी सेम। आप डेवलपिंग कंट्री में अलग अलग प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी देख सकता है, जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सीज़न के हिसाब से जिसका बेरोजगारी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम देख नहीं सकते, इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जॉब्स होती है उसका अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक्सेट्रा। सो मोर एवर दैट पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी लॉन्ग। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है डेवलपिंग कंट्री में। उन लोगों की जॉब पर्टिकुलर फिक्स नहीं रहते। द पीपल ऑफ दोज कंट्री लिविंग इन टू द डेवलपिंग कंट्री, दोज पीपल लूज हिज जॉब मैनी टाइम्स, राइट। सो वी कैन सी दैट। नेक्स्ट इज अ पुअर, द मेन फैक्टर, राइट। पुअर्टी इज ऑल्सो फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। जो गरीबाई होती है वो तो डेवलपिंग कंट्री का एक और फीचर है, ठीक है। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटी लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ एरिया कॉल्ड पुअर। प्लीज इसको जरा अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पुअर, ठीक है। ये जो गरीब होते हैं, जो अपनी रोजबरोज की ज़िंदगी जैसे कि खाना, कपड़े, मकान, एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीज़ें भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते, अपनी जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उसको हम पुअर कहते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट people who are not able to satisfy their primary need, people who are not able to satisfy their primary necessity like food, shelter, education and health are called poor, ठीक है। ये पुअर का डेफिनेशन हुआ कि दोज पीपल हु कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, दोज पीपल आर कॉल्ड पुअर, ठीक है। सो इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कॉन्स्टिट्यूट ऑन द थर्ड ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो हम डेवलपिंग कंट्री में इस प्रकार के पीपल ज़्यादा होते हैं, थर्ड ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है। तो जो टोटल पॉपुलेशन जो डेवलपिंग कंट्री का होता है उसके तीसरा भाग के पीपल गरीब होते हैं, इस प्रकार थर्ड पार्ट ऑफ द पीपल। सेवंथ है ड्यूल इकोनॉमी। वो क्या होता है, लेट्स नो। द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन अ ड्यूल और मिक्स सिस्टम। देखो, ड्यूल यानी दो होता है, ठीक है। ड्यूल यानी टू काइंड ऑफ इकोनॉमी कैसी होती है।
दिस इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इस प्रकार की इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री में वो बेस्ड है ड्यूल और मिक्स सिस्टम, जो ड्यूल और मिक्स सिस्टम का होता है ये। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ऑल मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सेन इन द विलेज। इसमें एक साइड कैसा होता है कि एकदम बैकवर्ड साइड होता है, बैकवर्ड साइड फार्मिंग करता है, उसकी जो मशीनरी होती है वो भी बहुत पुरानी होती है, ओल्ड मशीनरी होती है। ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर होता है, बहुत पुरानी मान्यता जो रूढ़ि चुस्त है, जो सुपरस्टिशियस है, जो एविल प्रैक्टिस है, तो उस प्रकार के पीपल जो ऑर्थोडॉक्स पीपल है, जो एक ही अपनी एक ऑर्थोडॉक्स थिंग को पकड़ के रखता है, वैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। लेस प्रोडक्शन एरिया, और बहुत प्रोडक्शन लेस होता है, जो प्रोडक्शन होता है बहुत कम होता है, और ऐसा हम देख सकते हैं विलेज में। तो उसका अपोजिशन क्या होता है, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड क्या होता है, तो देर आर द सिटीज हैविंग अ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो देखो इसमें क्या होता है, डेवलपिंग कंट्री में एक बाजू एक तरफ गांव है जो काफ़ी पुअर्टी है, उसमें ऑर्थोडॉक्स है, ओल्ड मशीनरी है, देर इज़ नो फैसिलिटी, देर इज़ नो comfortable for the developing, there is no proper education, proper guide, many things you can feel into developing country। मगर उसमें अपोजिशन क्या होता है, इन द बिग सिटीज, इन द गुड सिटीज हैविंग अ मॉडर्न इंडस्ट्री, वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री होती है, न्यू प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है, मॉडर्न इम्प्लीमेशन होता है, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल होती है। जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल होती है, लाइफस्टाइल जो अपने कपड़े की, ग्रूमिंग की, ड्रेसिंग की है ना, सब कुछ देयर वी कैन सी इनटू द सिटी। So we can easily know that we can easily see into developing country the difference between poor and rich, difference between village and cities, different in lifestyle, different into the economy and all that. We can easily feel out, we can easily note out. तो उसका 8th पॉइंट है इनसफिशिएंट ट्रांसफर स्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो डेवलपिंग कंट्री में होता है वो ट्रांसफर जो आने जाने के लिए ट्रांसफर फैसिलिटी बहुत कम होती है, और अनसफिशिएंट होती है, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो पीपल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम पर्टिकुलर सिस्टम विच इज़ अवेलेबल फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन इनटू द डेवलपिंग कंट्री। तो क्रूशियली विटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटी, बैंकिंग एक्सेट्रा आर लेस लैकिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज विच हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देखो इसमें क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग कंट्री में बहुत कम होता है। जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, बैंकिंग सेक्टर का होता है, वो काफ़ी कम होता है, जो होता है इतना अच्छा नहीं होता है। सो इन द मेनी हॉस्पिटल देयर इज़ नो फैसिलिटी, नॉट sufficient facility for the people. Few hospital have a 100% equipment for the treatment, but charge will be, charge of that particular hospital is very high. So normal people, they are middle class people, I don't talking about poor people, but lower middle class and higher middle class people can't afford it. So very difficult to get the cure of his problems and all that, तो इशू होता है। तो ये इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलपमेंट सिटी में देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वन है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इनका जो फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट होता है डेवलपिंग कंट्री में। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। दिस कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्शन एंड फार्म प्रोडक्शन एज वेल एज अ मिनरल और। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर तो डेवलपिंग कंट्री तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल है। 60% ऑफ पीपल गेट ए जॉब थ्रू द एग्रीकल्चर, मोर आर द पीपल एम्प्लॉयड इन टू द एग्रीकल्चर, राइट। तो जो फॉरेन में ट्रेड करने के लिए जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफली एग्रो प्रोडक्शन होता है और जो फार्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो मिनरल्स का रिलेटेड जो मिनरल और एक होता है, कच्चे धातु होते हैं, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वही डेवलपिंग कंट्री कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि अगर है तो वो बहुत रेयर होता है। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन हैव लेस डिमांड। तो इस प्रकार की जो प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर की और सबकी बहुत कम डिमांड होती है, ठीक है, और उसका रेट भी बहुत लो रहता है। सो लेस इनकम इज गेन्ड बाय द एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स। तो जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, उसकी गुड्स है, उससे जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो एक्सपोर्टिंग से जो उसका गुड्स भेजते हैं, एक्सपोर्टिंग में गुड्स भेजते हैं, तो उससे जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है। वाइल इंपोर्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड मशीनरी, राइट।
as the cost of this production is more, so expense of input rises. तो अगर हम क्या करते हैं, वी कैन सेंड एक्सपोर्ट द एग्रो प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, तो दैट वी कैन गेट द वेरी लो प्राइस एंड देर इज नो डिमांड फॉर दिस प्रोडक्टिविटी in the other country. But in the developing country also need a machinery, industrial machinery, other thing they import from other thing. तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, उसके जो मशीनरीज होते हैं दूसरे को जो महंगे होते हैं, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सस्ते भाव में जाता है, और हम जो मंगवाते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं वो हमें काफ़ी महंगे भाव में मिलता है, तो वो भी थोड़ा इनबैलेंसिंग हो गया है ना. एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन इज मोर, तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो एक्सपेंस ऑन इम्पोर्ट राइजेस, तो डेवलपिंग कंट्री का जो एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो बिजनेस करता है वो सस्ती चीज़ें में जाता है, और जो उसको लेना पड़ता है उसकी ज़रूरत को कंप्लीट करने में वो बहुत महंगा हो जाता है, तो वो थोड़ा अनबैलेंसिंग हो जाता है. दस एज अ कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आर एडवर्स, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो फॉरेन कंट्री के साथ का जो बिजनेस है वो एडवर्स यानी विपरीत रहता है, कुछ कंफर्टेबल नहीं रहता है. देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ फॉरेन डेब्ट, तो इसकी वजह से जो हमारे जो फॉरेन कंट्री का डेब्ट है वो बढ़ जाता है, जो जिसको कर्ज कहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वी हैव नॉट अ सफिशिएंट इनकम, राइट, बिकॉज वी प्रोडक्शन इन द डेवलपिंग कंट्री प्रोडक्शन डिपेंड ऑन ओनली मैक्सिमम प्रोडक्शन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. तो in the agriculture production demand is very less into the in the developed country, right. So and if we export the agro product, so we can get the very low price, right. Or now if we want to develop our country, so we need to machinery, industries and other things that we have to export from the other country, and that price was very high, that price is very high. So वो थोड़ी डिफरेंट रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कर्ज बढ़ जाता है. दस वी सी अबाउट द मेंशन फीचर इन डेवलपिंग कंट्रीज है, तो हमने देखा कि ये जो पूरे फीचर्स है वो डेवलपिंग कंट्री में है. इंडिया में सभी फीचर अभी भी राइट नाउ है, ठीक है, देयर इज़ नो चेंजेस, कुछ ज़्यादा बड़ा है सोशली, मगर ये तो पूरे है, इकोनॉमिकली तो है ही. एज इंडिया इकोनॉमी इज डेवलपिंग, तो इंडिया इकोनॉमी डेवलपिंग है, आपने देख लिया. ऑल दिस फीचर, पूरे फीचर है हमारे यहाँ पे आर रिलेटेड टू इंडिया इज़ अ ग्रेटर और लेजर मेजर, तो ये इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, मगर फिलहाल सब कुछ तो ज़्यादा ही है. अभी के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं कि हम कह सकें कि इंडिया ऑन अ ट्रैक, बट लेट्स होप इज़ गुड, राइट. सो चाहते हैं कि इंडिया भी आ जाए अपने अच्छे ट्रैक पे. आई होप all these points about Indian economy feature you got, right. So these are the 9 feature of developing economy like India: less per capita income, population growth, right, depend on agriculture, unequal distribution of income, unemployment, poverty, dual economy, insufficient infrastructure facility, and a form of international trade. तो ये सारे features I explained you. I hope you got all point. Next point, this one, economy and non-economy activities, we will see into the next video, right. So please go through it again, so you will get more information about these features, and find out the more sources from the internet or Google, YouTube, whatever you prefer you can do. So ज़्यादा information आप collect करो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, दैट यू कैन गेट द मोर डेफिनेशन अबाउट इकोनॉमिक्स, राइट. सो आई होप you all are fit and fine at your home, so please stay your home and do study regular, and we will meet again as soon as possible, right. So have a nice day, bye.